2-point charges -4 microcoulomb and +4 microcoulomb given. This constitute electrical dipole placed at -900 and 900 centimeters, so the gap between them is 18 centimeters, and it is put here in uniform electrical field of strength 10⁴ Newton per Coulomb. We have to find out the work done on the dipole in rotating from equilibrium position to 180-degree rotation. So here we have to find the work done. So work done is equal to what? Potential energy, and the formula of potential energy of dipole is given as E minus PE cos theta 2, that is the final angle, cos theta 1 is the initial angle, and this initial angle is given 0 degree, final angle here as per the question 180 degree, electrical field given है 10⁴ Newton per Coulomb, and P is what? Q into separation distance. So Q into separation distance, suppose D, that is 18 सेंटीमीटर. सब वैल्यूज को पुट करने के बाद वर्क डन कितना हो जाएगा? -P. P मीन्स 4 माइक्रोकूलम इंटू सेपरेशन 18 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लिया. Now electrical field 10⁴ also Newton per Coulomb. Cos 180 -1, cos 0 1. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 18 4 जा 72 and 2 also 1 into 10⁴. This is 8 4, so -4. तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 144. इसको हम जूल्स लिख रहे हैं. 10⁻³ जूल्स, एक डेसिमल यहाँ आ गया, तो 10⁻³ को मिली जूल्स लिख सकते हैं. ये ऑप्शन हो जाएगा वर्क डन का 14.4 मिली जूल्स. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. ऑप्शन 4 means this question 2, electrical potential is given of uniform charged spherical cell of radius 10 cm is 120 volt. This is the voltage given here 120. Potential at the center, potential at a distance r is equal to 5 cm, means at point P1, and potential at outside point, that is what, at P2, 15 cm from the center. So we have to find the potential at the center at the distance 5 cm, at distance 15 cm from the center. Now we know. तो मालूम है जो सरफेस का वोल्टेज होता है स्फेरिकल सेल का, हर पॉइंट पर सेम रहेगा, जब सेंटर हो या कोई सा पॉइंट हो इनसाइड. So we know this at center and at 5 cm potential will be the same. At the center, at 5 cm डिस्टेंस, ये दोनों इनसाइड पॉइंट है, तो वही हो जाएगा ये वोल्टेज जो सरफेस का वोल्टेज है. सरफेस का वोल्टेज कितना हो गया? KQ/R. K मीन्स के लिख लेते, Q पता नहीं कितना. सरफेस की बात करते हैं 10 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट कर लिया हमने से मीटर में. क्वेश्चन में गिवन है 120 वोल्ट, यानी यही 120 वोल्ट सेंटर पे भी हो गया और 5 सेंटीमीटर इनसाइड पॉइंट पर ही P1 पर भी यही सेम हो गया. लेकिन वही आउटसाइड पॉइंट पर, आउटसाइड पॉइंट मीन्स एट पॉइंट P2, जो रेडियस गिवन है यहाँ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेम नहीं होगा, कम होगा. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KQ/R. R की जगह क्या लेंगे हम? 15 सेंटीमीटर. चेंज कर लिया. अब यूजिंग दिस KQ की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट. K की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर?
के क्यू की वैल्यू हो जाएगी 120 तो 10 इंटू 10 पावर -2, -2 कट के 12 रह गया, दोनों जीरो कट गए, 12 वोल्ट की वैल्यू आ गई के क्यू की 12। पुट कर देंगे डायरेक्टली यहाँ 12 ये है 15 सेंटीमीटर, अगर इसको ऊपर ले जाए तो हो जाएगा ये 4/5, 10⁻⁴, 2 को ऊपर ले गए तो 4 इंटू 100 अपॉन 24 जाए 80 वोल्ट आ रहा। तो ऑप्शन हो जाएंगे इनसाइड पॉइंट पर, यानी सेंटर पर और इनसाइड पॉइंट पर हो जाएंगे 120 वोल्ट, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे भी 120 वोल्ट सेम ही रहेगा, सरफेस पे भी सेम है, और आउटसाइड पॉइंट पर कम होगा, दैट इज 80 वोल्ट। तो ऑप्शन हियर इज 1, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Two large plane parallel conducting plates. These are two conducting plates, 1 and 2. Here the gap between them is 10 centimeter between the two plates. The potential difference between them is V. 10 centimeter पर गैप पर पोटेंशियल है, 10 सेंटीमीटर गैप पोटेंशियल है V। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी पर निकलना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को लेते हैं एक्स एक्सिस में लेट, तो द डिस्टेंस द डिस्प्लेसमेंट along the electrical field of AB and CB both are same. So instead of voltage across AB or voltage across CB is same, the distance is different. So we can find voltage AB or voltage CB, both must be same. So now solving it, voltage between the two plates suppose is the electrical field and V क्या फॉर्मूला होता है ED, E पता नहीं कितनी, गिवन नहीं है, दैट D हमको दिया 10 सेंटीमीटर, डायरेक्टली अगर कन्वर्ट कर ले हम इसे, ये हो जाएगा 0.1 मीटर, यानी ये हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल गया, V वोल्टेज है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाएगा V अपॉन 0.1, क्वेश्चन 1। हमको लेना था ये वाली चीज, वोल्टेज ए बी में या वोल्टेज सी बी में, क्योंकि हमको डायरेक्शन लेनी है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट सी बी हो जाएगा एज पर पाइथागोरस 4 सेंटीमीटर, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर गैप डिस्टेंस, 4 सेंटीमीटर के लिए वोल्टेज निकालना है, ये मालूम है हमको। तो वोल्टेज सीबी में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड वही रहेगी सेम थ्रू आउट, because there are two plates, electrical field will be the same everywhere. Electrical field multiplied by the distance CB, that is what, that is 4 सेंटीमीटर, अगर कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो 0.04 हो जाए। इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दी हमने यहाँ पे, हो जाएगा V अपॉन 0.1 to 0.04, तो इसे एक डेसिमल कट गया 0.4 को हम लिख सकते हैं, में डेसिमल बोल रहे हैं 2/5, सॉल्व करते हैं 0.4 ही आएगा, तो आंसर हो जाएगा VCB या VAB 2/5 ऑफ B, थर्ड ऑप्शन हो। ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए, नंबर 1 इंपॉर्टेंट, जो वोल्टेज होगा जो ए बी के लिए होगा वही सी के लिए होगा, बट डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन हमको लेनी है डिस्टेंस लेनी है, रादर डिस्प्लेसमेंट लेनी है, चाहे ए बी की बात करो चाहे सी की बात करो,
डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसलिए हमने VCB 4 सेंटीमीटर लेके हमारा वोल्टेज AB वाला या CB वाला दोनों सेम रहेगा, हम करके निकाल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट रहेगा। इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू चार्जेज 7 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर 0 इन पॉइंट्स पर दिया है, और ये है 7 सेंटीमीटर एंड 0। यहाँ पे चार्ज दिया हुआ हमको 7 माइक्रोकूलम, इसे Q1 बोल देते हैं, 7 माइक्रोकूलम एंड दिस Q2 इज -4 माइक्रोकूलम। Now we have to find the potential energy of this configuration. Potential energy का फॉर्मूला होता है, potential energy is given by U, K Q1 Q2 upon R. K की वैल्यू 9 10.9, Q1 7 माइक्रो, Q2 4 माइक्रो। माइनस साइन चाहे रखो चाहे आगे यहाँ पे ले लेते आगे। अपॉन डिस्टेंस कितना है 14 सेंटीमीटर, हमने मीटर में चेंज कर। पूरे को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 4 को सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1.79 जूल्स, राउंड ऑफ करके बोल देंगे 1.8। तो ऑप्शन 2 is in this question. There are charge Q1 placed at A point, Q1, Q2 at B point, the gap 30 centimeter, Q3 at C point, gap here is 40 centimeter। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं सब इसको कि हमने Q3 चार्ज को C से D तक ला रहे हैं इस डॉटेड लाइन के पाथ से। फाइनली हमने C से D पर जाके इसे प्लेस कर दिया, पुट कर दिया। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ Q3 गिवन इन द क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक K की वैल्यू कुछ अलग है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, K की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहे हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग ये देखिए कितना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी इन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये डिफरेंस जो है ये हमको क्वेश्चन में गिवन है ये, तो इसे कंपेयर करके K की वैल्यू मिलेगी ना। फाइनल आपका यहाँ पे आ गया, तो पहले हम फाइनल निकाल लेते हैं। दिस इज Q1, दिस Q2 एंड Q3 D पे आ गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल एनर्जी का, Q1 Q2 अपॉन 30 सेंटीमीटर मैंने से मीटर में चेंज 0.3, Q1 Q3 वाला 3 यहाँ पे आ गया, दैट इज 40 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे Q1 Q3 अपॉन 0.4 मीटर। ना Q2 Q3 BD के बीच का गैप कितना हो जाएगा 40 - 30 यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। Q2 Q3 अपॉन 10 सेंटीमीटर मैंने मीटर में चेंज। तो दिस इज द फाइनल एनर्जी। जब ये Q3 C पॉइंट पे था, फिर से निकाल लेंगे, दैट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला वही होगा सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R3। अब ये Q1
Q1 Q2 ये 30 सेंटीमीटर सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। Q1 Q3 ये भी आपका 40 सेंटीमीटर गैप पर है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं। अब ये Q2 Q3 यानी ये वाली चीज वाली गैप हो जाएगी। Q2 Q3 पाइथागोरस से लगा सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। Q1 Q2 CB डिस्टेंस पाइथागोरस से आराम से निकाल सकते हैं। तो CB विल बी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट लेंगे, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में चेंज कर लिया तो ये 0.5 मीटर हो गया CB डिस्टेंस। यहाँ पर हम लेंगे Q1 Q2 Q3 लेकिन गैप कितना हो गया अब यहाँ पर 0.5 मीटर। यहाँ से अभी हमने कैलकुलेट, तो अब हम चेंज निकालेंगे इक्वेशन 2 में। 2 से 3 को माइनस करके ये वाली बात कर रहे हैं हम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इक्वेशन 2 में 3 को, यानी ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, तो ये बच गया। यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 कॉमन हो गया, 1/0.1 माइनस 1/0.5, इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 दिख रहा है हमको सब, 1/0.1 यानी 10 हो जाएगा। 0.5 पड़ जाएगा 10, तो 10 माइनस 2 यानी 8 आ जाएगा। 8 को हम ऐसे Q2 Q3 and it will be 8। इस इक्वेशन की बात करें 4 और इक्वेशन 1, ये दोनों हमको 4 तक कैलकुलेट करा। 1 क्वेश्चन में गिवन है, और दोनों को हम कंपेयर करते हैं। नाउ फ्रॉम 1 and 4 कंपेयर, क्या मिल जाएगा कंपेरिजन करके हमको एक ही वैल्यू Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K and 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 8 कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, यानी K की वैल्यू हमको मिल जाएगी 8 and 4, we are getting the value of K is 8, so option 4 is correct. Hello. In this question number 6, for a short dipole, means the gap between the positive and negative charge is very small in comparison to R. That is the short dipole. Square value of A at power can be neglected. So here 8.A, it is called axial position, and B point is called equatorial position. Equatorial position at A voltage here is V naught, formula here is Kp cos theta, theta is 0 upon R square, cos 0 is 1, so Kp upon R square is given V naught. And electrical field at axial position is K to P upon R cube for short dipole. Now Kp upon R cube is E naught upon 2. Suppose equation 2. At B means equatorial position, and this is axial position.
here V naught dash at equatorial position, it is 0. Region behind here is Kp cos 90 divided by R square. Because of cos 90 it is 0, so V naught dash is 0, but E naught dash at equatorial position, formula here is Kp upon R cube. R is here 2R cube. So Kp upon 8R cube or 1 by 8 Kp upon R cube. Using equation 2 here, we can write 1 by 8 into 1 by 2 of E naught. E naught upon 16. It means option 1 is correct. V naught dash is 0. E naught dash at equatorial position. E naught divided by 16. So option 1 is correct. Okay. Electrical field is away from positive charge, and direction of electrical field dipole moment is from negative to positive P. So the angle between P and E is 0 degree. Angle between P and E is 0 degree. Formula of electrical potential energy is given by minus P dot ERPE cos theta. PE cos theta. Theta means 0 degree. तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी PE माइनस PE, दैट इज मिनिमम. एंड टॉर्क फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, यानी PE साइन थीटा. साइन थीटा 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी ये हो गया. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड टॉर्क 0. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. Hello. In this question 8, electrical charges 2 microcoulomb, 2 electrical charges, dipole minus and plus, magnitude 2 microcoulomb, distance 0.5 micrometer, placed between the plates of capacitor, such that the axis is parallel to an electrical field established between them. Let हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लेते हैं बिटवीन द कैपेसिटर. ए पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट होती है, एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड हियर इज सेम थ्रू आउट. इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन, एंड 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डी गैप दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, एंड वोल्टेज है 5 वोल्ट. हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लिया. इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला आता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय गैप डी और एल. यहाँ वोल्टेज ले रहे हैं हम लोग 5 वोल्ट, क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर में से मीटर में चेंज कर, 5 से 5 कैंसिल होकर ऊपर जाके 10⁴ आ गया. 10⁴ वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम. ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई यहाँ पे. अगर डाइपोल को हमने रोटेट कर दिया 30 डिग्री से, then it tends to realign in the direction of electrical field due to the torque. You have to find out the torque. टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा. P हमारे पास है Q चार्ज 2 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय द गैप 0.5 माइक्रोमीटर. ये हो गया. इलेक्ट्रिकल फील्ड 10⁴ है, एंड थीटा 30 डिग्री, सो इट इज साइन 30. साइन 30 में डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2. साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है. इसको सॉल्व कर लेंगे. 2 कैंसिल हो गया, 0.5 10⁻⁶ 6 12, 12 - 4 8. 0.5 को उधर लेगा तो 5 × 10⁻⁹ न्यूटन
meter. This is the torque. So option 4 is correct. In this question, there are two configuration or figures given 1, 2 as shown in figure. 4 identical charges Q. Here Q naught capped at corners A, B, C, D. The charges here is Q naught charges at figure 1, 2. इस पोजीशन में रखा ए बी सी डी में, फिर हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके जी ऐसे चेंज कर दिया इसको. एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए गिवन. सेकंड फिगर में हमने पोजीशन चेंज कर दी. हमको क्या निकलना है? डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी. तो डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? Here formula है change in potential energy final माइनस ये निकलना फाइनल इनिशियल. पोटेंशियल का फॉर्मूला है एनर्जी का इनिशियल. फर्स्ट फिगर ले रहे हैं हम लोग. ए डिस्टेंस है, के इज कॉमन Q1 Q2 ए बी हमने ले लिया Q1 2 यानी Q1 Q2 स्क्वायर हो गया और डिस्टेंस हमारे पास है ए. फिर Q1 ए पर है, सी पर भी Q नॉट है, तो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस अब √2a हो जाएगी. फिर 1 4 ये Q नॉट स्क्वायर अपॉन ए. अब लेंगे हम 2 3 का 1 2 1 3 1 4. अब लेंगे 2 3 जब बी पर है और सी पर है. Q2 Q3 ए, फिर Q2 यानी बी पर है और डी पर है जो ये भी है Q नॉट स्क्वायर अपॉन √2a. फिर सी डी कर लेंगे लास्ट. इज द कॉम्बिनेशन लास्ट ए. ये हो गया इनिशियल. फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, Q1 Q4 अपॉन R14, फिर Q2 Q3 अपॉन R23, Q2 4 अपॉन R24, Q3 Q4 अपॉन R34. ये इक्वेशन 1 बोल दिया. 2 फाइनल सेकंड फिगर के लिए. सेकंड फिगर के लिए हम लेंगे, फिर इसको Q1 Q2 बोल दिया. अब जी वाले को तो ये Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस अब हो जाएगी ये वाली ई. ये डिस्टेंस हो जाएगी a/√2. फिर हम इसे लिखेंगे ये वाला कॉम्बिनेशन. सारे कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4. फिर ये इस तरह से अब 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4. अब 2 का 3 के साथ हो जाएगा. ये हो जाएगा 2 का 3 के साथ ही a/√2. फिर 2 का 4 के साथ Q नॉट स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा. फिर ये Q3 Q4 H और F वाला लेना हो जाएगी. फिर से a/. अब इक्वेशन 1 में फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यानी इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे. तो पुट कर देते हैं हम लोग डेल्टा U फाइनल माइनस इनिशियल. कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे जो कैंसिल हो रहे हैं तो बच गए. निकाल लेते हैं हम लोग. कॉमन ले लिया के Q नॉट का स्क्वायर अपॉन ए. कॉमन ले लिया हमने. कॉमन ले लिया तो सॉल्व कर लेंगे. कॉमन लेके मैंने √2 माइनस ये ऑप्शन आ रहा है 2 √2 - 3 √2 - 4 √2 - 3 √2 - 4 √2 - 3 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 - 4 √2 -
we have to find the equipotential surface equation. There are three linear charges, charge density, spun along wire, charge density lambda, raised along x-axis, y-axis, z-axis. तो मालूम है सब इन फाइनल लॉन्ग वायर का लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/2πε0 लैम्डा। तो चाहो तो हम 4πε में लिख सकते हैं, इसको लिखें के लिखते हैं यहाँ पे 2λ/f आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, 2k λ/r। हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड का वोल्टेज के साथ लिख इज इक्वल टू माइनस dv/dr। dv/dr को क्या बोलते हैं हम लोग, dv/dr को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो निकालना है इक्विपोटेंशियल यानी वोल्टेज निकालना है, तो dv को लिखेंगे माइनस का e का फॉर्मूला इक्वेशन 1 से पुट कर दिए हैं, तो जाएगा माइनस का 2k λ/r/dr को इंटीग्रेट कर लेते हैं, लिमिट लेंगे r0 से r, तो वोल्टेज जाएगा लेट v0 से v, तो अगर लिया v तो v0 लोअर लिमिट हो गया, v अपर लिमिट है, -2k λ, तो लॉग आएगा लॉग विद बेस ई, ln लिख सकते हैं चाहे लॉग विद बेस ई, बात है r0 से r यानी v माइनस v0 विल बी 2k λ log r माइनस 2k λ log r0, और ये जाके यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कोई भी कांस्टेंट ले रहे हैं, इसी को ये क्योंकि वैल्यू सेम है कांस्टेंट, इसी को ही कांस्टेंट बोलते हैं। इट विल 2k λ अगर प्लस आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू अगर एक्स वाई प्लेन में है तो y² + z² हो जाएगा, yz प्लेन में है तो हम एक साथ ही ले रहे हैं सी, सबसे पहले vx यानी yz प्लेन की वजह से, फिर vy x z प्लेन की वजह से, vz x y प्लेन की वजह में, ये क्वांटिटी कांस्टेंट ही है, माइनस भी लगा के कांस्टेंट ही ले, तो हम ले रहे हैं log x, तो लिख सकते हैं y² + z² का रूट, ऐसे y को लिखेंगे x² + z² अंडर रूट, बाद हम z को लिखेंगे x² + y, यहाँ पे एक साथ ये विल बी 2k λ, मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग का फॉर्मूला है log a प्लस log b प्लस मल्टीप्लाई आ जाएगा, ताकि लिख सकते, तो हमने लिख दिया x² + y² + z² एंड z² प्लस x प्लस z², ये भी कांस्टेंट है, अब इसको एक साथ ही लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट ये 2k λ भी कांस्टेंट है, लॉग भी, हम इसको एक साथ ही लिख रहे हैं 2k λ x² + y² + z²
जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, मतलब ये सब भी चला गया, स्क्वायर भी हट गया, अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट के ये लिख जाएगा, ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स ऑल्सो कांस्टेंट, मतलब ऑप्शन इसमें 1, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट।